हाय हाय चिकू जी। हाय हाय शेखर भाई, कैसे? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हो। चल रहा है भाई, ऐसे ही। मस्त काम फाम था। अभी ऐसे ही थोड़ा बात चल रहा था मेरा मैनेजर के साथ, तो आई वाज 3 मिनट्स लेट। Okay, okay, no worries. So हम्म। let me just quickly introduce. Okay, so my name is Shekhar and working in SAP industry from last 17 years. Okay, and done number of implementation in different industry like manufacturing, production, services, etc. Okay, so my core expertise is basically SAP project systems, plant maintenance, and production planning. Okay, and I also know the other modules like FIC, working knowledge. Okay, yeah. So Chico, over to you. आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए लाइक कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको गाइड करूंगा एंड ड्यूरिंग द डेमो वी कैन डिस्कस. Okay, so honestly, I do have 6 year of FICO experience. Last 2020, I got the experience from this training center with Tarun only. Okay, Okay. and completely now I'm working as a senior consultant in Mafatlal Industries Limited, Mumbai. Okay. Okay, na. And Mm-hmm. I was having couple of project also. Okay, and also some of the colleagues are there, and I'm taking the team lead also. Okay, I was having good knowledge in finance as well as controlling. Okay, Mm-hmm. now I want to learn plant maintenance, or else we can say AEAM. Okay, enterprise asset management. Both are same only, Yes, yes. So but in SAP, yeah, yes. EAM has some extra things, like how we are having some S4HANA and Fiori difference. The same is having on PM and EAM. Okay, na? Mm-hmm. So now I want to learn EAM because I want to like going to become a plant head or like a IT head. Okay, na. So if Mm-hmm. you are going to become a IT head, you have to knowledge about all the manufacturing areas as well as the finance areas. Okay, na. Mm-hmm. So Very my prime motive is like that only. Hence, I have taken this. I want to learn EAM as of now. Okay, now like how exactly it is working and good. what is the thing is going on and how I will can help to my user. That is my main motto. Mm-hmm. ठीक Hmm. है. ठीक है. तो आपको ऑलरेडी आई थिंक प्लांट मेंटेनेंस के बारे में पता ही है ऑलरेडी कि हम लोग उसमें करते हैं Correct, किसको. correct. ओके, सो हम लोग सिलेबस पार्ट में बात करें या फिर कैसे स्टार्ट करें. Yeah, we can discuss about the syllabus only first. Like, what are the things that we are going to cover, and how many days it will take, and like what is the prime motive, like what chapter it will play a vital role. These are the thing I want to know from you, and like for how many days I'll get the training for PM, and how much, how many month it will take to get it cover. ओके ओके, मैं लेट मी जस्ट शेयर करता हूँ. जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स. होपफुली मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा. या एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा मेरा स्क्रीन आपको विजुअल होगा. Yes, yes, it is visible, visible. सो बेसिकली जो कोर्स है बेसिकली मे बी फॉर यू कुछ चीजें मतलब काफी सारी चीजें कुछ नहीं ऑलरेडी पता होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. ओके, सो एक्चुअली जो कोर्स है डिजाइन है फ्रॉम द फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रेशर मीन्स फ्रेशर टू यू कैन से एज अ कंसल्टेंट. ओके, सो इसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि हम लोग रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं. रियल मीन्स वर्चुअल प्रोजेक्ट. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मतलब मैं अभी सिनेरियो भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं अपने बैचेस को रन कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मैं प्री क्रिएटेड डेटा पे आपको कुछ रन करके दिखाने वाला हूँ, एक्सेप्ट अगर कहीं पे कोई इशू है लाइक देन हम लोग ट्राई करते हैं. अदरवाइज मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको एक वर्चुअल रियल डेटा के साथ ही पूरा सिनेरियो एंड टू एंड एक्सप्लेन करूँ. ठीक है, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, मे बी हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं. लाइक मे बी ऑलरेडी पता होगा लाइक कि ब्लूप्रिंट क्या है, फिट क्या है, पेन पॉइंट एज टू बी. ओके, ऑलरेडी पता ही होगा इफ यू आर मींस ऑलरेडी वर्किंग एज अ
कंसल्टेंट। तो ये We can speak organizational structure and that you're heading also you can speak. yes, Sorry, we can like escape. yes, That's not a part. yes. तो हाँ. यहाँ पर मैंने कुछ और लेवल डेटा का मतलब कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया। इन रियल वर्ल्ड में भी दिस विल बी डन बाय द FICO एंड योर MM टीम। ठीक है, Correct, correct. ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो हम PM में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद MM का भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखा है। रीजन क्या है कि जब हम लोग बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो हमें कोई मटेरियल कोड्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर आप कोई रैंडमली कोई मटेरियल कोड यूज करोगे अपने प्लांट के केस में तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ MM से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ बेसिक जो भी मुझे मटेरियल मास्टर क्रिएशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद द MM हम लोग यहाँ पे EM की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके। इसमें फंक्शन लोकेशन का डिटेल में रहेगा। मतलब आफ्टर द फंक्शन लोकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स फंक्शनलिटीज रिलेटेड टू द फंक्शन लोकेशन इन मोर डिटेल। सेम थिंग इज applicable for the equipment also. Okay, and after that other configuration like a plant location, missing point, missing document, maintenance planning, order type, missing point, plant for QM number range, etc. All the other configuration. Okay, okay. And after that business process. So in one part means one class we are going to discuss what is the basic difference between notification and order types. Okay, and what are the different notification and order types, etc. Okay, and after that we are going to discuss business process. Okay, so all the major processes are covered here, and we are going to discuss different type of cost. Okay, in EM detail, like what is the meaning of plant, actual, estimated, commitment, settlement. Okay, maintenance strategy, end to end, PR creation, quality. Okay, good to see EM tables, reports. Okay, and after that applications like EM, MM, PS, FICO, QM, TMS, etc. Okay, and other than this अगर आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है तो वो भी हम लोग टेक केयर कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या होता है जनरली जो नॉर्मल क्लासेस चलती हैं जिसमें मतलब एज अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसको टाइम लग जाता है, लगभग 25 to 30 क्लासेस के एवरेज में लग जाता है। ठीक है, ओके, यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ थिंग्स, सो मे बी हम लोग इसको अर्ली क्लोज कर सकते हैं। एंड मेरा जो रहता है मैं आपको क्लियरली अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज कि नंबर ऑफ क्लासेस से कोई भी मेरा वो नहीं है। बेसिकली नंबर ऑफ टॉपिक्स पे मैं डील करता हूँ। मे बी अगर मुझे 60 क्लासेस डिलीवर करना है या 50 क्लासेस करना है तो मैं करूंगा अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू 100% सेटिस्फाइड। ठीक है, और मे बी अगर 15 क्लासेस में या 20 क्लासेस में भी क्लोज कर देता हूँ और आप सेटिस्फाई हो, सो वी कैन क्लोज। ओके 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 ओके, नो, तो मैं थोड़ा क्लासेस का आपको दे भी देता हूँ जो अभी करंट में बैचेस रन हो रहे हैं। तो अभी also we are going to get the like integration between this PM and MM and PM and FICO. yes also yes, will cover that ना? जो और लेवल और MM का हम लोग कर रहे हैं बेसिकली वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप उसको समझ पाएं कि हम लोग इन कॉन्फ़िगरेशंस को क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्लांट को उठाते हैं और रन करके देख लेते हैं ना। ठीक है, बट जब हम लोग FI का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, MM का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशंस में एक्सप्लेन भी करूंगा, बट समहाउ वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा उस टाइम। Correct. So, may I know how many members are there currently? Like, we are going to start a fresh session, or else I will get add on the like existing session. देखिए क्या है, मैं अभी क्या है कि जो बैच है ऑलरेडी मेरा स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी करंट में मतलब एक बैच चल रहा है मेरा EM का। ओके, बट समहाउ मेरे पास ना बैंडविड्थ नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट सिस्टम्स के भी बैचेस में लेता हूँ, प्रोडक्शन प्लानिंग के भी लेता हूँ और कुछ सपोर्ट वर्क भी रहता है मेरे पास। How the project system and production maintenance is like plant maintenance is different. देखिए प्रोजेक्ट सिस्टम इज बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर द प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, है ना। ठीक है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट मतलब प्लान किया है तो उससे रिलेटेड like for capex and opex, correct? Yes, ठीक है। एंड प्लांट मेंटेनेंस और यू कैन से एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट, बेसिकली वी आर यूजिंग
for the managing of existing asset which is already installed in any organization. ओके और प्रोजेक्ट सिस्टम से हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग टू बी एसेट के लिए वर्क कर रहे हैं, या हम लोग जो कन्वेंशनल एक्टिविटीज है अदर देन कैपेक्स उसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. ओके 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 सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. ओके ओके, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं दोनों में, करेक्ट ना? नहीं डिफरेंस क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट डिफरेंस है. प्रोजेक्ट सिस्टम बेसिकली फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. प्लांट मेंटेनेंस फ्रॉम द मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ओके मैं एक एग्जांपल लूं कि आपको एक घर बनाना है. ठीक है. ओके अब घर बनाने के लिए मे बी आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ सकता है, कुछ बजटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करना पड़ सकता है, और आफ्टर 1 ईयर मे बी आपका घर रेडी हो गया. ठीक है. ओके अब घर में कुछ रनिंग कॉस्ट आएगी कि कभी मतलब प्लम्बिंग का रिक्वायरमेंट है, प्लम्बिंग एक्टिविटीज का, कभी इलेक्ट्रिकल वायर रिप्लेस करनी है, कभी स्विच करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है. तो वो एक्टिविटी जो है वो टेक केयर होगी, अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज बोलूं, प्लांट मेंटेनेंस के थ्रू. ठीक है. ओके 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 तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो वहां पर आपने क्या किया, वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी की, भाई ये काम मेरा कब तक हो जाएगा, इसके लिए मुझे बजट कितना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट मुझे करनी है. ठीक है. ये एसेट की वैल्यू क्या फाइनली बनी. तो जब वो सिस्टम में आ गया एज ए एसेट, ठीक है, फिर आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, एज ए मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो अगर रिक्वायर्ड है तो. ठीक है. तो दैट इज बेसिक. ठीक है. तो दोनों का डिफरेंट है, बट मतलब कई बार नेम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. हम लोग पीएम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है. बट ऑब्जेक्टिव दोनों का डिफरेंट है. ठीक है. दोनों का बिजनेस प्रोसेस भी डिफरेंट है, बट हाँ उनके बीच में इंटीग्रेशन वर्क करता है. जैसे मान के चलिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लाइक कोई प्लांट का इंस्टॉलेशन है. ओके तो उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया. ठीक है. अब वो 1 साल बाद, मतलब प्रोजेक्ट बहुत लंबा है आपका, 5 साल 7 साल का, लेकिन इक्विपमेंट में कोई खराबी आ गई. ठीक है. उसका खर्चा तो आपको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस टीम, है ना. ठीक है. ओके तो उस तरीके की जो कॉस्ट होती हैं वो हम लोग मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू टेक केयर करते हैं, बट उसका जो एक्सपेंसेस बुक होते हैं, मतलब जो कैरियर होगा, कॉस्ट कैरियर, वो होगा अपना प्रोजेक्ट सिस्टम्स. ठीक है. तरीके से इनका इंटीग्रेशन वर्क करता है. बट अदर देन दिस, अगर आपको लगता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग पीएम को कंट्रोल भी कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए खर्चा मुझे करना है. ठीक है. अब ये 100 रुपए को मुझे कंट्रोल करना है, तो प्रोजेक्ट सिस्टम में फंक्शनलिटी होती है अवेलेबिलिटी कंट्रोल की, है ना. तो आप मतलब कि प्लांट स्पेसिफिक या नेचर ऑफ वर्क स्पेसिफिक आप अपने मेंटेनेंस WBS बना सकते हो, और उसके थ्रू अपने मेंटेनेंस ऑर्डर लिंक करेंगे. तो जब उस WBS learn about WBS in this. नहीं, WBS पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सिस्टम्स ना. ओके 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 नहीं हम अगर WBS भी, अगर कोई बात नहीं, WBS PS में आ जाते हैं, कैपेक्स एंड ओपेक्स में, करेक्ट ना? बिल्कुल. ओ करेक्ट. नो वरीज. ओके तो हम लोग इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं. ठीक है. मतलब इफ यू नीड इट, ओके, हम लोग इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं. तो उस केस में क्या है कि थोड़ा सा ड्यूरेशन कम हो जाएगा. रीजन क्या है कि जो ऑर्ग लेवल डेटा है ना, हम लोग सेम यूज कर लेंगे, और आप एंड टू एंड सिनेरियो भी सिंक कर पाएंगे. ओके ठीक है. तो इट्स योर चॉइस. अगर आपको इंटीग्रेटेड करना, मतलब प्रोजेक्ट सिस्टम्स एंड प्लांट मेंटेनेंस, हम लोग दोनों कर सकते हैं. ठीक है. दोनों का रिलेशन भी आपको समझ में आएगा. मतलब यू आर ऑलरेडी मींस एक्सपर्ट इन FI, CO एंड अदर मॉड्यूल आल्सो, तो मे बी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी. ठीक है. सो अगर आपको इंडिविजुअली करना, दैट इज आल्सो ओके. ओके ठीक है. तो अभी जैसे आप शीट देखेंगे, ये मतलब एक 2 बैच चल रहे हैं प्लांट मेंटेनेंस के, जिसमें मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया फ्रॉम द टाटा केमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सिनेरियो बना रहे हैं. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली आप देखेंगे एक बैच और है जो 7 AM में चलता है मॉर्निंग में. ठीक है. जिसमें हमने मॉडर्ना इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है. ठीक है. एक बैच है जो अल्टरनेट डेज पे एज वेन एज चलता है, मींस एज पर द कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे लोग शिफ्ट में काम करते हैं. ठीक है. करेक्ट. तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी, और तो वो लोग बता देते हैं कि आज अवेलेबल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सिंक कर देता हूँ. तो ये जैसे मैंने वेल्सपन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट किया हुआ. ठीक है. करेक्ट. तो इस तरीके से सिनेरियो बनता है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, बट मेरा थॉट ये रहता है, मतलब कि अदर देन द स्टैंडर्ड डेटा, मैं आपको डेटा क्रिएट करके दिखाऊं और उस डेटा को यूज करके दिखाऊं बिजनेस प्रोसेस में, ताकि आप सिंगल ये डेटा तो मैंने वहां क्रिएट किया था, ये यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है.
ठीक है, तो जैसा भी हो आप बता दीजिएगा, बट करंट में अभी मतलब बैच नहीं है. इफ यू वांट टू स्टार्ट 1-to-1 तो हम लोग कर सकते हैं, बट ऑन द वीकेंड्स ओनली. अभी क्या पूरा That is okay. We'll start in the weekend only, okay, na? And हम्म, that is 1-to-1 only. That would be helpful, like to understand and to you will guide me on a proper way because see, already you have taken the class. Half of the things you have already guide them, okay, na? हम्म, And I will be a fresher in this EAM only, okay, na? हम्म, बिल्कुल Okay. बिल्कुल. तो And इसमें कोई वो नहीं है, आप जैसा भी कंफर्टेबल हो बता दिए. रीजन क्या होता है ना, देखिए जैसे आप बैचेस में स्टार्ट करते हो ना, सबका अपना डिफरेंट पिच होता है ना. अब कोई फ्रेशर भी है, कोई नया भी है, तो आपको लगता है यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो ये चीज ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. यू आर थिंकिंग फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे पता होना चाहिए correct, प्रॉपर लेवल पे, ताकि मैं किसी से डील करूँ तो कोई मुझे बेवकूफ ना बना पाए, है ना. ठीक है. correct. Obviously. Because see, you are also in a SAP industry. End of the day, our motive is like to हम्म. capture the user only.